Hello, Gurukulians. How are you? I hope you all are fit and fine at your homes and fighting with the so called disease coronavirus. So, today we are going to start a new chapter of history for class 10th, that is, Rise of Nationalism in Europe. This is a chapter of class 10th history. So, here in this very chapter, we will understand few things. First thing that we will understand is the concept of nation state, how nation state emerged, right? Second thing, we will understand that what was the role of French Revolution in shaping nationalism, how France proved to be an important country that helped in movement, that helped in giving people the idea of revolution, and also to make or to develop the idea of nation state. Third thing we will understand here is how the idea of France helped other countries to develop the sense of nationalism and the idea of La Patrie, that is fatherland, and the idea of citoyen, the citizen, means the people of the country started to feel that they are the citizens and they have their rights, right? Then we will talk about, of course, equal rights. Then we will talk about the age of revolutions, which is basically from 1830 to 1848, wherein we will witness that how different kingdoms actually emerged, different kingdoms changed, war between the kingdoms and emergence of nation state took place. We will also read about the making of Germany and Italy. Then finally we will see about visualizing the nation, and then we will understand the concept of nationalism and imperialism. What is the difference between nationalism and what is the difference between imperialism? Before that, let us understand the emergence of concept of nation state. What is the concept of nation state? So, during the 19th century, if I talk about during the 19th century, this concept emerged, right? So, during the 19th century, nationalism emerged as a force. Nationalism emerged as a during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought massive changes, right, which brought massive changes in the political and mental world of Europe. In the political and you can say social world of यूरोप. मीन्स अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो नेशनलिज्म एक ऐसा फोर्स है, नेशनलिज्म एक ऐसा सोच है, नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत है जो लोगों के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आई. बदलाव क्या लेकर आई? लोग ये सोचने लगे कि इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है, यहीं से शुरू हुआ आइडिया ऑफ इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट. अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट? बिकॉज लोगों को ये फील होने लगा, लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि जो डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं, उसकी जगह पर हम दे स्टार्टेड द यूज वर्ड हम मीन्स हमारा, लाइक एज वी सी इन द डायनेस्टिक रूल्स, in the monarchical rules, in the kingdoms.
होता क्या था कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि बहुत सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल था वो कम प्रिविलेज एंजॉय करता था। एक जो वर्किंग क्लास ऑफ पॉपुलेशन था उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था, कोई उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई थी, सारे टैक्सेस उनसे वसूले जाते थे, एंजॉय करते थे कोई और। जैसे हम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिवीज़न ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। तो जब लोगों के दिमाग में ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि देश हमारा है, हम देश के वासी हैं, हम देश के नेटिव मेंबर्स हैं, तो हमें भी वो सारी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल रही है जो बाकी लोग जो है जो हमसे ऊपर बैठे हैं, कास्ट हायरार्की में ऊपर हों, चाहे सोशल ऑर्डर में ऊपर हों, उन्हें वो फैसिलिटीज़ मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है। तो ये आइडिया जब उनके पास आया तो इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट आ गया, राइट। तो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट। अब देखो एक बात है, नेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, अब कोई नेशन स्टेट एक दिन में तो नहीं बना होगा, राइट। कोई कंट्री जो पहले मान लो बहुत सारे किंग्स या किंगडम्स के द्वारा रूल की गई हो, अचानक से उसे देश बनाना ये एक दिन का तो बात नहीं है। अगर हम अपने कंट्री इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे देश में देखिए आज भी बहुत सारे राजवाड़े या खानदान है, लेकिन फिर भी हमारा देश आज एक कंट्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत पहले की अगर हम बात करें तो क्या था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। लाइक राजस्थान के अलग कोई रूलर होंगे, गुजरात का कोई अलग रूलर होगा, एमपी का कोई अलग रूलर होगा, पाटलिपुत्रा का कोई अलग रूलर होगा। अब इन सारे रूलर्स को मिलाकर एक कंट्री बनाना क्या इतना आसान रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर सबके रूल्स अलग थे, सबकी थिंकिंग अलग थी, सबके टाइप्स अलग थे। टाइप्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अलग थी। अब इन सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक में इमर्ज करना वॉज नॉट अ टास्क ऑफ वन डे, राइट, रादर इट वॉज अ टास्क ऑफ यू कैन से मेनी ईयर्स। लोगों की सोच बदलने में, लोगों के तरीके बदलने में बहुत सारे टाइम लगे, और यही सोच या तरीका जो है नेशन स्टेट को जन्म दिया आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम। ओके, सो नेशन स्टेट इज वन, डेफिनेशन है, लिखूंगा बाद में, पहले आप समझ लें। नेशन स्टेट इज वन in which majority of its citizens including rulers came to develop a sense of common identity and shared history। चाहे वो रूलर हो, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो किसी भी क्लास के लोग हों, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो हिस्ट्री है, मीन्स हमारा जो पास्ट है, दैट इज सेम, राइट, एंड वी ऑल शेयर दैट कॉमन पास्ट। So this sense or ये this development, this commonness was achieved through struggle, through the action of leaders and the common people। और ये जो सोच है ये आने में एक दिन नहीं लगा है, बल्कि बहुत सारे लीडर्स ने इसके पीछे स्ट्रगल किया है, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग एक जैसी हुई है, तब जाकर नेशन स्टेट डेवलप हुआ है। तो वी कैन राइट दैट अ नेशन स्टेट is a long culmination of past। Culmination means जुड़ाव। It is a long culmination of past, commonness, and shared identity। Shared identity, these things when mixed together gives us the idea of nation state। Okay, so a nation state is a long culmination of past, commonness and shared identity, right? Now from here, as I've told you that French Revolution played a very important role in developing the idea of nation, in developing the idea of a country, जिसे आज हम nation state कहते हैं, of course। So the French Revolution and the idea of nation। So from French Revolution we got the idea of la patrie, that is fatherland, and le citoyen, that is the citizen। So the French Revolution which started in 1789, कब start हुआ? The French Revolution
which started in 1789, that is official record of course, शुरू तो बहुत पहले ही हो गई होगी, but officially we know the French Revolution which started in 1789, it paved a way for the modern nation state and also had a big part in the birth of nationalism. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर, राइट. फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्वेश्चन द ओल्ड मोनार्कियल ऑर्डर. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा क्या काम था? दे क्वेश्चन द ओल्ड मोनार्कियल ऑर्डर. जो पुराने राजा थे, रजवाड़े थे, उनके अपने नियम कानून थे, उनके ऊपर सवाल खड़े करते थे कि भैया आप जो ये तरीका अपना रहे हो ये कहाँ तक सही है, और ये सही है तो ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को ही क्यों फ़ायदा हो रहा है, इसमें सारे क्लास ऑफ लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, राइट. सो दे क्वेश्चन द ओल्ड मोनार्कियल ऑर्डर एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर नेशनलिज्म. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्या थे, वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो वो लोगों को एनकरेज करते थे कि आप भी देश के वासी हो, आपका भी देश के ऊपर उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का हक है. तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों के मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होते थे that yes, we are the member of a country, we are the citizen of a country, and being the citizen of a country, why we are deprived from the rights that is being given to others or a certain class of people who enjoy certain rights. We are going on, we are leading our life as a bonded laborer, we are leading our life only as a laborer, we have no freedom, we have to give more and more taxes. So when these things came into the mind of people, they started to question the monarchical system. और जब राजवाड़ों को या फिर मोनार्कियल सिस्टम को एक ग्रुप ऑफ पीपल ने इस तरह से जब क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो दे फेल्ट दैट ओ माय गॉड, द पीपल आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अवर लेजिटिमेसी, दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द सिस्टम. So somewhere they felt that yes, now it's the time for a change. Who? Common people, right? So from here, the idea of French Revolution emerged, and this idea means the French revolutionaries, wherever they went, they encouraged people, they put in questions among them and tell the people that how this old regime needs to be improved or it needs to be wiped out and a new system of nation has to be established. So from here came the idea of La Patrie and Le Citoyen, right? So from the very beginning the French revolutionaries introduced various measures and practices. बहुत शुरू से फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे प्रैक्टिसेस लोगों के अंदर लाए दैट क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. ये करने की क्या ज़रूरत थी? ये उन्होंने इसीलिए किया ताकि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आए. अब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आप ऐसे समझिए, आज हमारे देश में चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद आपको वोट देने का हक है ना. सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि उन्हें लगता है कि देश का हर एक नागरिक बराबर है और उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट. तो ये जो ला पात्रे और ला सितियोन का आइडिया था, ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एकता की भावना, बराबरी की भावना लोगों के अंदर आ सके, राइट. सो द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाइक द आइडिया ऑफ ला पात्रे, La Citoyen, that is citizen among the French people. These ideas emphasized the nation of a united community. इन आइडिया से लोगों को ये पता चला that we people might be from different community, might be from different caste, but as a citizen we are same, right. New French flag was designed. एक नया French flag डिज़ाइन किया गया, ठीक है, जो लोगों को ये संदेश देने लगा कि आप किसी भी किंगडम से हो, डजेंट मैटर, उस किंगडम के सिंबल अलग होंगे, उस किंग का सिंबल अलग होगा, बट नाउ दिस फ्लैग रिप्रेजेंट्स दैट द होल फ्रांस इज अ यूनाइटेड वन. ऑल द पीपल ऑफ द फ्रांस
are the citizen of the France and they have their equal rights, right? So this is the idea of la patria and la citoyen. Second is the centralized administrative system. Centralized administrative system, as I've told you that in earlier times France was divided into different kingdoms, अलग अलग राजा, अलग अलग रूल, अलग अलग तरीके, उनको ख़त्म कर दिया गया। उनकी जगह पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जहाँ पर सभी लोगों के लिए नियम और कानून बराबर हो। जैसे आज मान लीजिए हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान क्या है? एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो पूरे देश के लिए लागू होता है, राइट? सो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट in place and formulated uniform laws for all citizens within the territory, within its territory. जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको डिस्करेज कर दिया गया और फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज फॉर द होल कंट्री. सो दिस इज हाउ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्कड. ओके, with the new events फ्रांस रीच्ड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द यूरोप. और ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ये फ्रांस से निकलकर बाकी और भी जगहों तक जाने लगा और यही फ्रांस के लिए एक नया रास्ता इन्होंने खोला. इनफैक्ट फ्रांस से और भी जो सटे देश थे वहाँ भी लोगों के अंदर ये भावना आने लगी कि नहीं, नाउ इज़ द टाइम दैट व्हेन वी नीड टू ब्रेक दिस ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम एंड मूव अहेड. थर्ड इज द नेपोलियनिक कोड. एज यू हैव रेड इन क्लास 9th that during the French Revolution, after the Jacobean Club was formed and the leader of the Jacobean was guillotined, then again Napoleon, he destroyed the democracy in France, right? Napoleon destroyed the democracy in France and incorporated revolutionary principles by introducing Civil Code of 1804. नेपोलियनिक कोड ने क्या किया था? इसने सिविल कोड लागू कर दिया था 1804 में. इसी को सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है. इसमें इन्होंने नेपोलियन ने कुछ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स या फिर कुछ सिस्टम डिवाइस किए थे जो सभी लोगों के लिए बराबर था, राइट? इवन दो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, he incorporated revolutionary principles by introducing the Civil Code of 1804, which came to be known as Napoleonic Code. This code removed all the privileges based on birth, established equality before law. नेपोलियन ने क्या किया? जैसे बहुत सारे क्लास ऑफ पीपल थे जिनको जन्म से बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, नेपोलियन ने उस कोड को ख़त्म कर दिया, बल्कि उसकी जगह पर कानून बना दिया और उस कानून के तहत सभी को बराबरी का हक मिलने लगा, राइट? सो ही abolished the privileges based on birth, established equality before the law and secured right to property. right to property को सिक्योर कर दिया. तो इससे लोगों के अंदर क्या एक भावना आई कि yes, now whatever the rights are there, right, it is not the right by birth, whether you have to acquire that right. So this is how Napoleonic Code also helped in contributing the idea of nation, right? इसको हम लोग आगे और डिटेल में, सो आज हम यहीं रुकते हैं एंड आइडिया ऑफ नेशन. अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि फ्रेडरिक सोरेयू एक पेंटर था जिसने 1848 में एक सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स बनाई थी और कैसे उसने सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स से नेशन को व्यू किया था. दैट इज़ अ यूटोपियन विजन, वैसा विजन जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अब जैसा होता है ना फ्यूचर में मन में सोचते हैं किसी बात को और वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ से मिलता जुलता हो जाता है, उसे यूटोपियन विजन कहते हैं. सो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन stay healthy, stay fit and read from NCERT book that you have. Thank you.